कि मैंने भी ऐसा स्टार्ट किया, रात को सोने से पहले मैं एक प्रॉब्लम रीड कर लेता था और सुबह उठ के उसका सॉल्यूशन मेरे दिमाग में था और वो हो ही जाता था। वो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। मैं कोई भी डिफिकल्टी ले लूं, रात को सोते, बिकॉज एक ब्रेन तो ऑन ही होता है, तो आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर। सारे दो माइंड होते हैं, वो वन इज लाइक कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लाइक्स मनी, फैसिलिटीज, एंड अनकॉन्शियस, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, वो कॉन्शियस माइंड को ही आते हैं। अनकॉन्शियस माइंड लाइक्स हैप्पीनेस। आपको पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलती है, आपको हैप्पीनेस मिलती है हॉबीज से, और हॉबीज के लिए चाहिए आपको टाइम, और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो पड़ा रहता है, वो उसको वो हैप्पीनेस ही चाहिए। तो वो अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड को सिटी पसंद है तो आप मतलब उसमें यस करोगे ही करोगे। they usually take 2 on-campus technical rounds. But I was lucky enough, they like my performance, so I got selected in only one technical round and followed by one HR round. In technical round, usually before technical round there was one coding round. So in coding round there was 2 problems, and all the 2 problems I like Leetcode medium hard. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ हैं ओम आशीष सैनी, जिन्होंने कि अभी रिसेंटली मास्टर कार्ड निकाला है और ये अपकमिंग HD1 है मास्टर कार्ड में। सो आज हम इनसे बात करेंगे कि लाइक कैसे इन्होंने मास्टर कार्ड क्रैक की और किस तरह से इनकी प्रिपरेशन जर्नी रही है। सो स्टार्ट करते हैं ओम भैया के इंट्रोडक्शन के साथ। Hello everyone, my name is Om Ashish Kumar Soni and I am final year student at Dharmsinh Desai University in Nadiyad, Gujarat, and I will be joining Mastercard as software development engineer 1 in next year 2024. So apart from that, I am currently Node.js intern at Simulas, one startup, and apart from that, I am a competitive programmer. I enjoy problem solving, and formerly I was representing TCS in my university, so I was TCS campus ambassador. Apart from that, one Codechef DDU chapter, one decryptors coding club was going on in my college. I am president of that chapter from 1.5 years, and I am leading the coding community in the Dharmsinh Desai University. And apart from that, I have little bit coding achievements in competitive programming, so I am expert on Codeforces. I am 5-star on Codechef. Apart from that, on Leetcode, I am Guardian 2255 rating, max rating, and I am CAN on Netcoder. So this was the basic introduction, and yeah, almost all thing about me. So after this amazing introduction, आप थोड़ा सा बताएंगे कि मास्टर कार्ड करती क्या है? So Mastercard एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कंपनी है, ये लोग जनरली मानते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो भी पेमेंट करते हो, लाइक गूगल पे, फोन पे, जो भी ऐप से पेमेंट करते हो, अगर आपका कार्ड मास्टरकार्ड का है, वो जो सारा प्रोसेसिंग मास्टरकार्ड द्वारा होगा। सिर्फ गूगल पे और वो सब जो है ना, वो आपको सिर्फ इंटरफेस देंगे। बैकएंड में जो पेमेंट का जो टेक्नोलॉजी पावर करता है ना, वो मास्टरकार्ड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन, डिजिटलाइजेशन, टोकनाइजेशन, ऑल दोस थिंग्स आर डन बाय मास्टरकार्ड, बिकॉज दिस इज जस्ट अ जिम्स ऑन which I have given introduction of Mastercard, because it does a lot of things. Even one or two video will be insufficient for that. So this was the basic introduction for Mastercard. ओके कूल। तो अब थोड़ा सा चलते हैं लाइक मास्टर कार्ड की हायरिंग प्रोसेस की तरफ। तो भैया सबसे पहले आप बताओगे कि आपने अप्लाई कैसे किया था इस रोल के लिए? Basically, Mastercard came on our university. So if I say, our university is one of the top 5 university in Gujarat, Dharmsinh Desai University. So Mastercard came for recruitment in university. I was in 3rd year. I was not even 4th year, but I was in 5th semester. And Mastercard came, so we applied. We filled the form. The CGPA based shortlisting was done. 8.5 was the criteria, and I was above 8.5, so I was able to clear that. Then after that, resume based shortlisting was there. After filtering the resume, they usually take 2 on-campus technical rounds. But I was lucky enough, they like my performance, so I got selected in only one technical round and followed by one HR round. In technical round, usually before technical round there was one coding round. So in coding round there was 2
problems, and all the two problems I like Leetcode medium hard. And after coding down two technical round, but I was having only one, and in which all the CS fundamentals like DBMS, OOP, and software engineering principles, that was asked a little bit about system design, small low level design. And with that I was also asked about three coding problems to write a pseudocode and white paper, and followed by HR round, all the common behavioral questions, and they come up with offer at the evening. So this was the one day hiring ओके in detail. अच्छा, आप बता सकते हो कि टेक्निकल राउंड में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उनकी डिफिकल्टी क्या रही होगी? Difficulty technical round में I would say lead code medium was enough to crack it. ओके, एंड आप मतलब कितने टाइम में उन्हें सॉल्व करने में एबल थे? That was the thing that I like, because I solved all the problems in almost minutes. Minutes means I would say 3-4 minutes I have written. So I was very confident in that part, because I was doing competitive programming since last 2 years. When I was in fifth semester, it was 2 years. Now it is 3 years. So I was confident in. ओके, जैसे कि आप मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत अच्छे हो, तो थोड़ा बताओगे कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया था, और जब आपकी इंटर्नशिप आई थी तो तब तक आपने कितना पढ़ लिया था? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक स्पोर्ट जैसा है, लाइक वो स्टडी जैसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको एज करना है ना उसमें तो स्टडी तो लगेगी. लेकिन मैंने रैंडमली थोड़ा स्टार्ट किया था, कॉलेज में से पुश कर रहे थे कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए. So sir has given some of the resources, and like C++, we were studying C++. So C++ में थोड़ी सी कर ली थी हैकर रैंक पे. उसके बाद मूव ऑन किया कोडशेफ पे मैं सेकंड सेमेस्टर में 2 स्टार बन गया था. So उसके बाद बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हुआ कि सेकंड सेमेस्टर के एंड में मैं थोड़ा डेवलपमेंट में घुस गया था, तो व्हाट्सएप का क्लोन बना रहा था. फिर थर्ड सेमेस्टर में मैंने वो क्या बोलते हैं उसको मॉन स्टैक सीखा. उसके बाद रिएक्ट नेटिव से कुछ इंस्टाग्राम क्लोन, यूट्यूब क्लोन वगैरह बनाया था. तो उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन दैट डेवलपमेंट पार्ट वाज रियली important for my hiring, like all those things that I have achieved. So development was equally important, not only competitive programming. But yeah, coming to the point that competitive programming, I stopped in second semester ending, and I continued in third semester, but not that much seriously. I became 3 star on Codechef. But I started Leetcode. I was doing data structures like tree, linked list, and I have not touched a graph, but stack, queue, and array, string, etc. But Leetcode cleared my data structure fundamentals. But again, I was not improving. I again fall back to 2 star on Codechef. In fourth semester, I remember exactly in the December ending or January starting, the IIT Bombay contest was there. So I appeared in that contest and I became 4 star. So that was the motivating thing for me. When I became 4 star, no one in my class was 4 star. And even 4 star at Codechef is like win-win situation for you. Even lot of referrals you got for MNC if you are 4 star on Codechef. So I get motivated and I started giving contests. I started learning everything. I was becoming like huge nerd, and meanwhile the COVID second wave came. So we were back to the home, we were back to the online. So I started keep learning every day. I pick one Geeks for Geeks article for competitive programming journey. उसमें जो सारे आर्टिकल्स दिए थे ना, जो सारे टॉपिक्स के लाइक वो आ रहा है, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ रहा है, उसके बाद वो रिकर्जन, डिवाइड एंड कंक्वेयर, ग्रीडी है, सॉर्टिंग है, वो बेसिक तो हो गया था. उसके बाद मैंने थोड़ा एडवांस गया, स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स पे गया. उसके बाद लॉट ऑफ थिंग मैंने उतना कर लिया था उस टाइम पे, सेगमेंट्री, फैनविक ट्री, वो 2 सेट. उसके बाद हेवी राइट डिकम्पोजिशन, जो कोडफोर्सेस में मास्टर लेवल तक नहीं आता, वो सारे टॉपिक्स कर दिए. तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि मुझे बहुत कुछ आ गया था, लेकिन अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी. ग्राफ्स के सारे एल्गोरिथम्स, वो फ्लॉयड वॉल्शर, डायक्स्ट्रा, बेलमैन फोर्ड, और वो सब लाइक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, और वो सब कांस एल्गोरिथम, कोसाराजू एल्गोरिथम, ऑल दोस. तो उसके बाद ये था कि कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ आ गया है. एक महीने के अंदर ये सब हो गया था. तो आई स्टार्टेड गैदरिंग माय कोड्स इन वन गिटहब रिपोजिटरी.
and I have that repository public. I will be giving you, so you can put in description as well. Sure. But yes, so in I started gathering repositories and I started testing my codes on Gigs for Gigs is good platform comparative to Leetcode. It is free and you can test your codes. So I started testing algorithm, and yes, at that time I became 4-star. After 4-star, I became 5-star on Codechef after learning segmentary. So yes, so that was one of the big achievement in my life. And after becoming 5-star, I also got internship. So that might be coincident, but my coding achievement was little bit high in that 4th semester. So I got internship offer from one startup, and I did internship in my 4th semester vacation. And in that duration only, Monday to Friday internship work, and at the evening, at night or at the weekends, I do contests. So at the Codeforces, I become expert on that time. So all these things are, I can summarize this thing in 3 words. Like one is the motivation that I got from IIT Bombay contest. The second thing is the consistency that you have in attempting contest and all those things. So and तीसरा थिंग ये है कि आपको लर्निंग करना चाहिए. मीन्स आप टोटली स्पोर्ट्स के तरीके से देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. लर्निंग थोड़ी सी होनी चाहिए और लर्निंग करनी भी चाहिए. आप अगर डीपी का प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हो या डिवाइड एंड कंक्वेयर का नहीं कर पा रहे हो, लिंक लिस्ट का नहीं कर पा रहे हो, तो उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. आपसे जितनी इजी हो रहा है तो मीडियम पे जाइए, मीडियम हो रहा है तो हार्ड पे जाइए. तो 3 थिंग्स आर देयर: मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी एंड लर्निंग. प्रैक्टिस इज ऑलवेज देयर. ओके, अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन था. लाइक आपको कोई टॉपिक ऐसा लगा जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा? ऐसे तो आपने सारे ही उड़ा दिए होंगे. हाँ, लेकिन एक चीज है कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि 2 तरीके से लोग होते हैं. तो एक होते हैं गॉड गिफ्टेड, जिनको बहुत जल्दी आ जाता है, और दूसरे तरीके के लोग होते हैं कि जो लोग सीख के करते हैं. वो बहुत सारे ऐसे नहीं होते गॉड गिफ्टेड कि उनका आईक्यू ऐसे. तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दो ना तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है. और मैं उसका बहुत ही फॉर्म बिलीवर हूँ. मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपने आप पे विश्वास रखो, अगर आप अपने आप में थोड़ा कोहेजन रखो और कपलिंग थोड़ा लेस करो तो और एफर्ट पूरे डालो तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी. लेकिन वो कोहेजन कैसे बिल्ड होता है पता है? कि मैं एक बार 3rd सेमेस्टर में था और हमारे कॉलेज में ना ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्लासेस के साथ साथ लैब्स में कॉन्टेस्ट होते थे. तो उसमें एक कॉन्टेस्ट था, उसमें स्टैक का प्रॉब्लम था. और स्टैक के प्रॉब्लम में क्या था कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन करके आता है. तो वो प्रॉब्लम करने के लिए मैंने 49 रॉन्ग सबमिशंस किए. तो मैं अपने आप से एक सवाल कर रहा था कि मैं 49 रॉन्ग सबमिशन क्यों कर रहा हूँ. तो मुझमें वो कोहेजन बिल्ड हो रहा था कि एक तो हो ही जाएगा, एक बार तो हो ही जाएगा. मैं कोड को मॉडिफाई कर रहा हूँ, फिर से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो 58 टाइम हो गए. तो अभी क्या होता है, अभी 5 बार मुझसे रॉन्ग सबमिशन हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो तो 49 था, ये तो सिर्फ 5 है, तो वो हो जाएगा. तो ये जो कोहेजन है ना, ये ऐसे बिल्डअप होता है कि आपको ट्राई करना पड़ता है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 49 रॉन्ग सबमिशन करो, लेकिन ये एक इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ. और मैंने फिर टॉप रैंक 1 कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है जिसका नाम है टूरिस्ट गेनेडी कोरटकोविच. सो उसकी मैंने प्रोफाइल देखी ना, उसने 302 रॉन्ग सबमिशंस किए थे, ओनली सिंगल प्रॉब्लम. So I thought like I was in the right path. So that was the thing. So कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाएगा. ओके, तो मतलब आपका कहना है कि आप एक अच्छे कोडर या प्रोग्रामर तब बन सकते हो लाइक अगर आप इस मतलब रुक नहीं रहे हो ट्राई करने से और ट्राई करे जा रहे हो. और अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स में 11th-12th में इंटरेस्ट आया हो ना, तो ये बहुत ही आसान है. मीन्स मैथ्स और फिजिक्स बिलीवर जो लोग हैं, जिनको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि साइंस स्टूडेंट ही कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम से है और उनको मैथ्स में इंटरेस्ट आता है तो फिर आपकी बन गई सीपी में. ओके, अच्छा आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पे बात करेंगे. लाइक आप किस तरह से मेंटेन करते थे? लाइक होते हैं ना कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आते हैं, कभी कभार शादी वगैरह में चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी नींद आ गई. तो इन सब के लिए आप क्या करते थे?
तो इसमें दो तीन चीज है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो ना तो थोड़ी तकलीफें होगी, मुझे भी होती थी। और मेरा रेटिंग ग्राफ अगर देखे ना तो आफ्टर कोविड इट इज लाइक स्टक। तो ये एक चीज है, हॉस्टल में ये सब चीजें होगी। मैं हॉस्टल में रह रहा था तो मेरे साथ होती थी, मीन्स मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मीन्स अगर मैस में जाना है, आपको खाना खाना है रात को, तो कॉन्टेस्ट नहीं दे पाओगे। राइट राइट। तो वो चीज एक है। लेकिन जब मैं घर पे होता हूँ तो सब कुछ अरेंज हो जाता है। तो वो एक चीज है कि हॉस्टल वर्सेस होम। और दूसरी चीज है डिस्ट्रैक्शन। सो नींद आती है तो यूजुअली कॉन्टेस्ट का क्या होता है कि 8 to 10 में होता है। आई डोंट थिंक 8 to 10 में किसी को नींद आ सकती है। और yesterday there was a contest from 10:15 to 12:30, so I haven't attempted because I can understand health versus competitive programs. So health versus hobbies, you should disambiguish between them. So उसमें तो आपको थोड़ा ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी में क्या है कि अगर आप शादी में चले गए या बाहर चले गए, तो उसमें मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि मैं एक बार गया था वीरपुर, और हम लोग जलाराम बाबा के दर्शन के लिए गए थे, और वहां एक रूम में हम रात रहे थे। तो रात को कुछ करना नहीं था और एक कॉन्टेस्ट था, तो मैंने फोन से अटेम्प्ट कर दिया। फोन से थोड़ी दिक्कत हुई कोडिंग करने में, एक थोड़ा टाइम लगा। लेकिन even if I was doing competitive programming in phone only before third semester, before I bought laptop, I was doing in phone only. So I was having little bit practice. So ऐसा नहीं है कि आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, लोग फोन में भी करते हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। फोन का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होता है, सिर्फ चीज यही है कि आपके पास स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो दिक्कत होगी थोड़े दिखने में, वरना ऑटो सजेशन तो गूगल बोर्ड भी देता है। तो वो चीज थी। तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मीन्स टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करो। और हमारे कॉलेज में है ना, ऑल इंडिया रैंक 1 उत्कर्ष गुप्ता आया था, ग्रैंड मास्टर ऑन कोडफोर्सेस। उत्कर्ष गुप्ता इज वेरी फेमस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर एंड ही वाज ऑल इंडिया रैंक 1 इन गूगल किकस्टार्ट आल्सो। ही वाज ऑफर्ड बाय गूगल आल्सो। सो उत्कर्ष आया था, उसने ये बोला कि वो पूरा दिन 80 to 85% वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्पेंड करता है। तो हमें ऐसा लगता है पूरा दिन लैपटॉप पे नहीं, फोन में प्रॉब्लम ओपन करके वो कोडफोर्सेस से प्रॉब्लम रीड कर लेता है। और फिर जब भी वो चलता है, खाता है, सोता है, वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, लैपटॉप के सामने बैठ के नहीं। वो यूज करता है, हमारे दो माइंड होते हैं, वो वन इज लाइक कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लाइक्स मनी, फैसिलिटीज, एंड अनकॉन्शियस, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, वो कॉन्शियस माइंड को ही आते हैं। अनकॉन्शियस माइंड लाइक्स हैप्पीनेस। आपको पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलती, आपको हैप्पीनेस मिलती है हॉबीज से, और हॉबीज के लिए चाहिए आपको टाइम। और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो पड़ा रहता है, वो उसको वो हैप्पीनेस ही चाहिए। तो वो अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड को सीपी पसंद है तो आप मतलब उसमें ये करोगे ही करोगे। तो उसने ये बोला कि मैंने भी ऐसा स्टार्ट किया, रात को सोने से पहले मैं एक प्रॉब्लम रीड कर लेता था और सुबह उठ के उसका सॉल्यूशन मेरे दिमाग में था, और वो हो ही जाता था। वो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। मैं कोई भी डिफिकल्टी ले लूं, रात को सोते, बिकॉज एक ब्रेन तो ऑन ही होता है, तो आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो 8-9 आवर्स का। सो ये दिस वाज वन हैक आई वाज यूजिंग। ये काफी अच्छी चीज बताई आपने। लाइक ये कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है, नॉट इन द प्रोग्रामिंग बट अदर चीजों में हुआ है। काफी सही है ये। अच्छा, आप उनको कुछ कहना चाहोगे जिनको कॉम्पिटिटिव कोडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दे वांट टू क्रैक सम गुड कंपनीज? या आप अपनी प्रोफाइल है ना साइड चीजों में अच्छी रखो। लाइक आप सॉफ्ट स्किल्स में बोलने में अच्छे हो। मैं इतना अच्छा नहीं था, वो मैं प्रेसिडेंट था एक कोडिंग क्लब में, तो उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो सॉफ्ट स्किल्स आपको किसी को भी बोलना हो, किसी को भी कुछ प्रेजेंट करना हो, वो अच्छा आना चाहिए। आपका रेज्यूमे बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं पसंद है तो एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको लीड कोड पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, वो स्ट्राइवर एसडी शीट वगैरह शीट्स आती है तो वो करो, तो वो भी अच्छा है। और डेवलपमेंट, अगर आपको सीपी नहीं करनी है ना तो डेवलपमेंट में पूरा हाथ होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट करो, एंड्रॉइड करो, iOS करो, या फिर वो Web3 ML वगैरह। लेकिन आपको डेवलपमेंट का आपके ऊपर वो जो क्या बोलते हैं, हाथ साफ होने चाहिए आपके उनके ऊपर। तो वो एक चीज है, यू शुड बी कंसिस्टेंट इन दैट। ओके। अच्छा, थोड़ा सा अपने कॉलेज के बारे में बताओगे कि वहाँ पे कैसा माहौल है पढ़ाई का?
लाइक आपने बात की कि योर यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन गुजरात. सो कॉलेज इज लाइक, जब हम गए ना तो स्टार्टिंग में 2 ईयर ऑनलाइन थे, लेकिन जब जब मैं ऑफलाइन गया हूँ ना, मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो वहां पे लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत करते थे. मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी बहुत किया है. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का तो एक माहौल है ही है. और एक चीज, वहां पे पढ़ाई का भी बहुत माहौल है. मीन्स आपका हर 28 डेज को एक इंटरनल होगा, उसके बाद ऐसे 3 इंटरनल के बाद एक वाइवा होगा, वाइवा के बाद एक्सटर्नल. तो वो जो डिस्ट्रैक्शन की बात होती है वो तो आता ही नहीं. वो मतलब हर 28 डेज को एक ही ख्याल आता है, अभी मैं मेरी लग जाएगी, नहीं करूंगा. तो एक चीज वो है. और मैं कहना चाहूँ तो कैंपस प्लेसमेंट वाज really good. I mean, nowadays recession is going on. That is a different thing. But my seniors' records, if I tell you, that is the list is really long. The highest placement in 2022 was 75 LPA. The 2021 was Google, 30 direct 30 LPA, and if I say last year का 35 LPA last year. This year is due to recession. This is little bit less, and placements are not over yet. So final figure is not there. But माहौल बहुत अच्छा है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी का. अच्छा ओम भैया, आप थोड़ा सा बताओगे कि आपका डेली शेड्यूल किस तरह से रहता है? Honestly, you want in very strategic way. Honestly, I don't like planning. I want to have myself in freedom. I want freedom and I like freedom. And my family supports me doing competitive programming for hours. So they also don't have any problem with that. So मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि सुबह में मैं 6-7 बजे उठ जाता हूँ. उसके बाद जो मन में आए वो करता हूँ. मीन्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम देखा जाए, आई हैव ऑल्सो इंटरेस्ट, वेरी डीप इंटरेस्ट इन चेस. सो मेरी प्रायोरिटी, जब मैं कॉलेज में था, अभी भी हूँ लेकिन अभी इंटर्नशिप चल रही है, जब मैं कॉलेज में था तो मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट होती थी स्टडी. CGPA वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकंड, उसमें से जो भी टाइम मिलता था तो वो मैं सीपी करता था. और सीपी के अलावा तो मैं सीपी इतना करता था कि टाइम ही नहीं मिलता था कुछ. तो हाँ, बस ये 2 ही चीजें रहती थी. लेकिन आई लाइक फन, आई लाइक चेस, आई लाइक टू प्ले चेस. बट या मेरा डेली शेड्यूल कुछ ऐसा डिकम्पोज कर सकता हूँ. करंटली आई एम वर्किंग इन स्टार्टअप, सो 9 to probably 9:30 to 6:30. It is flexible, but 9:30 to 6:30 or 7, I do my work. And apart from that, if at night, if it is after dinner, if it is contest, I attempt. हमारी मर्जी हो तो, मीन्स मेरी मर्जी होती थी तो ही मैं कॉन्टेस्ट देता हूँ, वरना नहीं देता हूँ. तो सॉरी, आई एम गुजराती, सो मीन आई स्पोक. सो या अगर मेरी मर्जी होती है तो मैं कॉन्टेस्ट देता हूँ, वरना थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ. और आई लाइक क्रिकेट एज वेल, सो आई विद माय फैमिली वॉच अ मैच टुगेदर. And in morning I do, I am very focused in morning. I do problem solving, competitive programming करता हूँ morning में. उसके बाद जब after having a fresh, I do some worship of God, and after that I start my work, daily work. But जब internship नहीं होती है ना, तो पूरा दिन competitive programming है और वो सब करता हूँ मैं. NLP रिसर्च में भी था, अभी भी थोड़ा सा काम बचा है, तो वो एक रिसर्च में भी था मैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाता था. बट आई लाइक एवरीथिंग which is having maths, which is having problem solving, which involves teasing the brain. So that's it. ओके. अच्छा तो भैया, अभी तक आपने क्या है कि सब कुछ बता दिया अपने बारे में, लाइक आपने किस तरह से स्टडी की, एंड यू आर अ चैम्प इन स्टडीज. सो इन शॉर्ट, अब आप कोई गाइडेंस या एडवाइस देना चाहते हो अपने जूनियर्स को जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाली प्लेसमेंट्स के लिए? तो एक चीज मुझे बहुत ही गलत लगती है अभी भी लिंक्डइन पर, कि लोग बोलते हैं कि 600 days of code I do every day, like code and random problem solving, easy problem solving. I don't like that. I believe that you should always try to upskill yourself.
अगर इजी कर सकते हो तो मीडियम पे जाना चाहिए, मीडियम कर सकते हो हार्ड पे जाना चाहिए, स्टैक का हो रहा है क्यू करना चाहिए, एरे हो रहा है स्ट्रिंग करना चाहिए। तो आपको हमेशा अपने आप को अपसॉल्व मीन्स अपस्किल करना चाहिए। और अभी लिंक्डइन पे मैं क्या देख रहा हूँ पता है कि रोज एक कोई ना कोई पोस्ट आती है, आज मेरी 300 स्ट्रिक थी, उससे क्या है, उससे कुछ नहीं होता। 300 दिन करने से कुछ नहीं होता। हाँ, आपका वो रैंडम प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होगा, लेकिन क्या उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। आई मीन अगर आपको करना है ना तो टॉपिक वाइज करिए, उसके बाद थोड़े से रैंडमली करिए। Leetcode and Codeforces are really good platform. If you want placements, go for Leetcode. But at least every person should try Codeforces in once in their life. Codeforces is really great platform, and if you really want to enjoy problem solving, then do Codeforces. So Leetcode वीकली कॉन्टेस्ट दे दो, हर वीक होता है। बाय वीक में एक सैटरडे को रात को 8 बजे होता है, संडे को सुबह 8 बजे होता है। तो 1.5 आवर का वो कॉन्टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको डीएसए तो इतना करना ही है, पहले से डीएसए पहले से ही स्टार्ट कर दो। उसके अलावा डेवलपमेंट की जो मैं बात करूँ ना, तो क्लोन्स बनाने चाहिए। मैं क्लोन्स बहुत बनाता था, मैंने व्हाट्सएप क्लोन बनाया था ना, वो सेकंड सेम में बनाया था मैंने पीएचपी में। सो वो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने सेकंड सेम में इतना एडवांस बनाया था। मुझे आज भी ऐसा होता है कि क्या किया था मैंने उस सेकंड सेम में तो हमें आरडीबीएमएस ही नहीं पढ़ाते थे, हमें सिर्फ पीएचपी पढ़ाया था, बेसिक माइस्क्यूएल पढ़ाया था। तो ऑल द फीचर्स आई हैव पुट इनटू इट, लाइक ब्लू टिक कैसे होता है, फोटोज कैसे शेयर करूंगा, स्टेटस अपडेट होता है, और स्टेटस भी अपडेट होता है ना, तो उसमें वो ग्रीन्स वाले जो होते हैं वो अनरीड होते हैं, उसके आसपास वो जो डैश्ड लाइन डैश्ड बॉर्डर होती है, वो सारे फीचर्स कैसे इंप्लीमेंट करूंगा ना, मैं वो सोचता रहता। तो काइंड ऑफ लाइक क्लोन्स बनाओ, इंस्टाग्राम क्लोन है, यूट्यूब क्लोन है, मॉन्स्टेक सीखो, वो आजकल बहुत चल रहा है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट नोड। सीखना है तो एंगुलर भी सीख सकते हो, लेकिन रिएक्ट बहुत चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू हैव अ हैंड्स ऑन एंड्रॉइड, सो लर्न फ्लटर। फ्लटर इज ऑन हाइप these days. So one tech stack you should have. These all are secondary. Your primary tech stack should be either Spring Boot, Java, or .NET Core, or Python. So this is the primary, because MNCs are working on Java or .NET, or if you are into ML, Python. So this thing is there. If you like ML, if you want to love doing ML, then go deep into it. But do not forget to do DSA. DSA is the basic thing. And yeah, competitive programming, if you want to do on Codeforces. It is really great platform. And अपसॉल्व करना चाहिए, कॉन्टेस्ट के बाद आपको अपसॉल्व करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है वो सॉल्व करने चाहिए। So this was the advice. And be polite, be calm while you are applying, while you are talking with the interviewer. Be honest, writing in your resume, and be active on LinkedIn. I got many opportunities from LinkedIn. I have done 3 internships, but apart from that, many companies are that वो डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं, आप सीधे ही आ जाओ। तो अगर आप लिंक्डइन पे अपने अचीवमेंट्स शेयर करोगे ना, तो वो बहुत ही मैटर करता है। मीन्स आपका कॉन्टेस्ट में कुछ अच्छा रैंक आ गया और आपने कुछ 4 में से 3-2 क्वेश्चन कर लिए, तो वो अगर आप शेयर करोगे ना, तो आपको लोग नोटिस करेंगे, और नोटिस करेंगे ना, तो जब वैकेंसी होगी तो याद भी करेंगे। तो वो एक चीज है। और रेफरल के लिए भी आप पूछ सकते हो, लेकिन रेफरल के लिए पूछने से पहले पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो रेफरल कई बार ऐसा होता है कि रेफरल के लिए लोग पूछ लेते हैं कि अगर आप एक्सपर्ट हो कोडफोर्सेस पे, नहीं हो तो मैं रेफरल नहीं दूंगा, और अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं हो तो रेफरल नहीं दूंगा, 4 स्टार नहीं हो तो रेफरल नहीं दूंगा। तो ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन अगर आपकी लीडकोड प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है, और I think Leetcode profile is sufficient to show that you are good, showcase your project, showcase that you are honest, showcase that you want to work, and do internship. At least one internship you should do. If it is less paying, then also it is fine, but at least one. Try for that. Because startups, you learn a lot from working at startups. They allow you to explore yourself, exploit yourself. MNC will not allow you to exploit. ओके, तो ओम भैया, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हो, एक्सपर्ट हो उसमें, तो आपने स्टार्ट डीएसए से किया होगा, तो आप कोई इजी अप्रोच बता सकते हो डीएसए को प्रिपेयर करने की?
डीएसए को प्रिपेयर करने की इजी अप्रोच। सो डीएसए में दो चीज आती है, एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। पहले डेटा स्ट्रक्चर सीख सकते हो, लाइक स्टैक, क्यू, अरे, linked list, tree, and graph at the end. And meanwhile, you can do like sorting in algorithm sorting, greedy. After greedy, you can do probably divide and conquer, recursion functions. After that, backtracking probably, backtracking, and at the end, dynamic programming. So that is one of the things. This is I mean I can provide some resources. I have one competitive programming repository I will be giving, and दो तीन resources मुझे बहुत अच्छे लगे। एक YouTube पे अपना कॉलेज का C++ प्लेसमेंट कोर्स है, वो बहुत ही अच्छा है अगर आप सीपी कर रहे हो या फिर डीएसए करना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, ड्राइवर्स प्लेलिस्ट इज रियली गुड ऑन YouTube. Apart from that, for algorithms, Tushar Roy and TechDoes are really good. I do watch them many times. And apart from that, Code and Code is one YouTube channel which you should watch. And for interview preparation, I guess Gaurav Sen and Byte Go is having a nice playlist on system design. Yeah, so this much is enough. But if you want to clear a CS funda, then probably Gates Masters playlist for CS Funda. This will be sufficient for an interview. Okay. If you want to crack a Google, then you should have hands-on competitive programming or very strong grip on DSA, because they sometimes ask segmentary as well. Segmentary and fan-victory, dynamic programming, graph problems. So this was all about. Okay, cool. आप कुछ कह रहे थे real time? Yeah, so I was talking about real-time uses of data structure and algorithm. So many times I have used DSA in my real life. I use it every day, but I will tell major cases. So मैं एक स्टार्टअप में था, मुझे वर्क करना था, तो मुझे एक ग्राफ में एक चार्ट जैसा उसमें एक एरो दिखाना था, तो मैंने वहां पे हैशटैग का यूज किया था। तो मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने सीपी का रियल टाइम यूजेज किया। वो बहुत सी चीज ऐसी होती है जो ट्रिवियल नहीं होती, लेकिन आपके लिए ट्रिवियल होती है, तो वो बहुत ही अच्छा है। सेकंड टाइम यूजेज मैंने किया था मेरे कॉलेज में, हमें एक इंटरव्यू लेके क्लब में मेंबर्स को शॉर्टलिस्ट करना था। तो हमने क्या किया था कि व्हाट्सएप पे कॉन्टेस्ट होस्ट किया था, उसमें से जो रैंक आई थी ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया पाइथन की पांडास लाइब्रेरी का यूज करके मैंने। उसके बाद दो जो वो शीट्स होती है एक्सेल शीट्स, उनको एक कॉलम से मर्ज करना था और यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना था। तो उसके लिए भी मैंने पांडास का वो डेटा फ्रेम्स को मर्ज किया। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर ईयर वाइज स्प्लिट किए और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। तो अगर आपको ये आता है ना तो ये सब चीजें 5-6 मिनट में हो जाती है। और अगर आपको नहीं आता है तो 3-4 लोगों को बिठाना पड़ता है, ये तुम इतने का करो, तुम इतने का करो। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप डीएसए का यूज करो ना तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। मैं एनएलपी रिसर्च में था, मुझको कुछ लॉग्स वगैरह आउटपुट के आते थे, मॉडल डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहा था, तो उसको क्लीन करके मुझे रिप्रेजेंट करना था। तो उसमें भी मैं ये सब स्क्रिप्ट लिख देता था क्लीनिंग की, मैन्युअली कुछ नहीं करता था। Yeah, that was all.